very good afternoon and welcome to everyone present here. Today, as we all know that, why do we have gathered here? The Health and Family Welfare Department LEA, under the National Program for Climate Change and Human Health, is organizing International Day of Clean Air for Blue Skies, an awareness program come training, community level training awareness on air pollution and its impact on health of traffic police personnel and women's health. It is just to raise awareness about healthy air and the effects of air pollution, which is one of the serious environmental threat to human health. To have organized the International Day on 7th September in collaboration with other departments also. So, without taking much time, I would like to request our Chief Medical Officer, Dr. Nursing Angoli, to please welcome address for a welcome address. Thank you, ma'am. During International Day of Clean Air for Blue Skies is Jacques Inogle, Dalo theme Inogle, the air we share. During a function, Honorable Chief Guest, Padma Shri Dr. Tsering Nurbule, retired physician specialist, Natay Amat Sokspe President Ajay Tsering Chondolle, Natay Amat Sokspe Vice President Secretary na Ikashkyot ne members Langes Sama, Tiningatay Gen Ikashkyoteno, Gen Lobsam Yantakle, Natay District Traffic Inspector Mr. Jamil Ul Rahman, Natay ASI Abdul Hamid Le, Yang Natay Ika Tsering Sonam Shkyoteno, Jikmet Dorje Le Shkyoteno, Yang Traffic Department staff Langes Ika Shkyoteno, Tene Ngaji Medical Department Ika staff Langes, Ngeja Tsangma Lange during E program Ipia Ika Gasujun Le. It's some Shikachaneno, Kingatangi, Koryukbo, Matangi, Havabo, Koryukbo, Lakmo Borgosesbo, some Shikachaneno. Devipia, Natang Ika, Samazuma Zateno, सिर्फ Natang शेषिया स्पेचेस चिपो मन पा हमें कुछ करना है, एक्शन करना है. We have to Natang air quality po improve choches inokle and Natang facilitate choches inok हमें एक्शन करने की जरूरत है. Air pollution, खोरियो भी सुपो योचेस पे जस्ते Natang me Lochigina Lak Tunchu me Tungsa Noble Zambling Gampina. 7 million people die each year due to air pollution. Natang ibo avoid कर सकते थे. Natang कुछ तुम छोटा भी होते हैं लोग ने. जैसे मीशी का कैंसर होता है. Natang थे बार मंपेक्ता मतलब समझन डॉक्टर को नहीं चोस्ते यंग टोंशेस को. मगर खोरियो को लखनऊ योग बिना इस टोंशेस को इस Natang शुभ जानते योग बिन. Zambling Gampina WHO ज़ेते लोग ले कि 100 में से 99% of world's population जो है वो polluted हवा वो breathe कर रहे हैं. आप खुद सोचिए नाता गे अपने गुप्चु गुरगुबो मी गोनी लुक्सपो लखनऊ मितकंबो उस इसके ने नो सम शिकायतों समय फारस मानो का सम शिकायतों समय ये ड्यूटी नो कि ये पेपिया नाता समाचितों अजुगज़त कोशिश वो सम शिकायत प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ. तो डॉक्टर सुनील भी आपको पूरा इसके डिटेल बताएंगे. और वंस अगेन सम्माला वेलकम जुले बताया था कि हम क्लाइमेट जो अपना होता है एक डे इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एंड ब्लू स्काई हम लोग करेंगे. उन्होंने 7 तारीख का डेट डिसाइड किया था. तो 2019 को उन्होंने पहला डे मनाया था और आज हम कौन सा डे मना रहे हैं? थर्ड टाइम हम लोग मना रहे हैं, है ना? ठीक. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. 7 September is the International Day for Clean Air for Blue Skies. अब ये मैंने आप बता दिया आपको कि कब से UN ने असेंबली ने लिया हुआ था, कब से चालू हुआ है, क्या हुआ है, उसी के बारे में डिटेल है. और आप सब लोगों को कोई जानकारी तो सबको ही पता है कि एयर पोल्यूशन कितना इम्पैक्ट डालता है हेल्थ के रिलेटेड. आप लोगों ने अभी कोविड के पेंडेमिक टाइम में भी देखा है कि कितना ज़्यादा अगर जिनको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज थी तो एक कोविड में कितने लोगों को परेशानियां आई हैं. तो सिमिलरली अगर जो पॉल्यूटेड सिटीज हैं अगर आप उनको इंडेक्सेस देखेंगे तो डेथ रेट वहाँ पे ज़्यादा था क्योंकि पीपल्स पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इलनेसेस से थे, है ना. इस वजह से
बहुत ज्यादा डिसीजेस को जनरेट कर देता है। आपको अस्थमा हो जाएगा, आपको हाइपरटेंशन आ जाएगी, डायबिटीज आ जाएगी, स्ट्रोक आ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, एयर पोल्यूशन रिलेटेड। तो ये सारी चीजें डिसीजेस ज्यादा जल्दी एज में आ जाती हैं, तो हम अपना जो नॉर्मल लाइफ स्पैन जो होना चाहिए हमारा, वो हम लोग कवर नहीं कर पाते। ठीक, अब ये आप देख रहे हैं स्टेटस ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया का जो पॉल्यूशन स्टेटस है, वन ऑफ द मतलब वर्ल्ड जो हुआ था पॉल्यूशन वगैरह कमेटी मीटिंग से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर किया गया था, इंडिया वन ऑफ द पॉल्यूटेड कंट्री। ठीक है, और मैक्सिमम पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया में, मतलब आप कानपुर को देख लीजिए, आप लखनऊ को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए। आप दिल्ली के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, सब लोग यहाँ से जाते हैं दिल्ली वगैरह, देखा होगा विंटर्स के टाइम में कितना पॉल्यूशन होता है, मतलब ब्रीथिंग नहीं हो पाती है, सूरज भी नहीं दिखता आपको। वहां पे क्या होता है, फॉग के साथ स्मोक भी होता है, फ्लो होता है, वो दिल्ली में आ जाता है। तो इसके कारण सरकार ने कुछ पाबंदियां वहां लगा दी है कि आप अपने क्रॉप का जो बचा हुआ रह जाता है उसको वहां खेतों में ना जलाएं। ठीक, Why is air pollution an urgent issue now? क्यों जरूरत है? आप देख रहे हैं डे बाय डे हम लोग हर जगह, आपके घर में भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। कोई भी आप बोलते हैं पॉल्यूशन अकेला एक नहीं है, आप कोई जो चीज वेस्ट खा रहे हैं या कुछ वेस्ट आपके घर में निकल रहा है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू लीड टू अ पॉल्यूशन, क्योंकि अल्टीमेटली उसको हमको डिकम्पोज करना है या फिर डिस्ट्रॉय करना है ताकि एनवायरनमेंट को हम क्लीन रखें। काफी गैसेस रिलीज होती हैं तो वो भी पॉल्यूट करती हैं एयर को। ठीक, वो नेचुरल कॉजेज हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट जो हमारे कंट्रोल में हम उसको रोक सकते हैं। तो हमको देखना है कि हम क्या क्या चीजों को रोक सकते हैं। हम इंडोर एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं और आउटडोर एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। हम लोगों को किस मीन्स से रोक सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा आपने ये चीज देखी होगी कि अपना ब्रीथिंग, मतलब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो सब जानते हैं कि लंग्स हमारे किस काम आते हैं, सांस लेने में। और हम लोग अपना जो वायु जो छोड़ते हैं और प्रदान करते हैं उसको प्राण वायु बोलते हैं। ऑक्सीजन, प्राण वायु, मतलब अगर हम 1 या 2 मिनट भी अगर हम लोगों को सांस नहीं मिलेगी, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। ठीक, इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ये जो पिक्चर देख रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से चालू हो जाता है, आपके नोज से चालू होकर सीधे कहां तक जा रहा है, लंग्स के वहां तक। ठीक, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की पिक्चर से पता चल रहा होगा। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा आप में से एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? एनीवन? कोई भी बताएगा एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है? देखो, एयर तो होती है, उसमें कोई पॉल्यूटेंट होगा, मतलब पॉल्यूटेंट क्या होगा, कोई गैसियस सब्सटेंस होगा, मतलब खराब गैस होगी, कुछ लिक्विड्स हो सकते हैं, ये सब जब मिलकर हो जाते हैं तो वो पॉल्यूट कर देते हैं एयर को। तो दोस पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो मटेरियल्स होते हैं जो एयर को दूषित कर रहे हैं, वो पॉल्यूटेंट्स की तरह होते हैं। आंखों से भी नहीं देख पाएंगे, वो कौन से होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं और कुछ को डस्ट पार्टिकल्स या कार्बन फॉर्म में भी होते हैं। ठीक, अगर आप एक बाल देख रहे हैं ना, अपना छोटा सा बाल, उस बाल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 40 माइक्रो पार्टिकल्स आपके ना टाइनी पीएम वाले आ जाएंगे आपके, मतलब एक छोटे से बाल के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कितने टाइनी होते हैं। नेक्स्ट, इंडोर एयर पोल्यूशन आप जब पिक्चर्स में देख रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि किस किस चीज से होता है। आप सोचते हैं कि हम अगर हीटर जला रहे हैं घर में या सीढ़ी जला रहे हैं या जो भी वार्मिंग के लिए कर रहे हैं, वो भी एक इंडोर एयर पोल्यूशन जनरेट करता है। ठीक है, अगर हमारा प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होता है, प्रॉपर इंसुलेशन घर में जैसे, तो डेफिनेटली आप उसको हीट करने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीटिंग चाहिए होगा, वो भी अल्टीमेटली पॉल्यूशन लीड करेगा। तो इसलिए जब घर बनाते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी करना चाहिए, ताकि हम जैसे साउथ फेसिंग घर बनाते हैं तो सन का ज्यादा आता है तो हमें हीटिंग के लिए कम यूज करना पड़ता है ना। ये सब हम लोग यूज करते हैं ताकि हम उसको कर पाए। और कुछ सोलर हीटर्स वगैरह कुछ हम लोग सिस्टम यूज कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनके कारण हम इंडोर एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे पहले लोग चूल्हा वगैरह जिसमें बनाते थे, अब सब लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनके जो गवर्नमेंट की योजना उज्ज्वला योजना करके थी, उसके तहत सबको घर को क्लीन फ्यूल एंड एनर्जी देना था, तो उसके तहत उन्होंने सबको घर में एलपीजी सब्सिडाइज रेट पे
सिलेंडर्स मुहैया कराया है ताकि लोग बाग इस पॉल्यूशन को, हाउस होल्ड पॉल्यूशन को कम कर पाए। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं उस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हम लोग एक हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन से भी हमारी डेथ हो रही है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल को यूज करना है ताकि जो पॉल्यूशन हमारे घर के अंदर हो, के बच्चे जितने भी हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है उनको। क्यों होता है? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप नहीं होता, लंग्स भी, ऑर्गन्स भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, इसलिए वो सबसे ज्यादा वनरेबल ग्रुप, एज ग्रुप में आते हैं। तो हमको उनको बचाना जरूरी होता है पॉल्यूशन से। उसके बाद दूसरे में हमने वुमेन रखा है। वुमेन क्यों रखा है? क्योंकि वुमेन हमने देखा है प्रेग्नेंट होती है और घर पे खाना बनाती है, तो खाना बनाते वक्त छोका लगाना या बाकी का कोई भी कुकिंग फील्ड्स यूज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्लोज एनवायरनमेंट में होती है, तो वुमेन और मोर वनरेबल होती है इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो ये सब चीजें अपने को प्रिकॉशंस रखना चाहिए ना। फिर जहां पे होगा वहीं पे खड़ा होना उनको, डेफिनेटली वहां पे सबसे ज्यादा एमिशन होगा फ्यूल्स का, जितना भी होगा धुआं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब कुछ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो वो लोग इनहेल करते हैं, उस एनवायरनमेंट में उनको ड्यूटी करनी है, तो प्रॉपरली उनको भी ट्रेन करना जरूरी है कि कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैंने ये बता दिया है कि चिल्ड्रंस क्यों एक्चुअली इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, मेरे को यहाँ से देना पड़ेगा। हाँ, मैं एक मिनट। अब ये वुमेन्स पे मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ वुमेन वाले भी आए हैं, तो हम लोगों ने बताया कि उनके उपयोग पर भी हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। ये देख रहे हैं कुकिंग वगैरह है, नॉर्मल गैस वाला चूल्हा है, इन्होंने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, तो इसके कारण सारा का सारा जो भी उनका निकल रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक, ताकि घर के अंदर वो ना जाए, है ना, ठीक। नेक्स्ट, पॉल्यूशन में अफेक्ट अस डिफरेंटली बेस्ड ऑन आवर एज एंड हेल्थ कंडीशंस, मतलब उम्र के साथ और बाकी के उसमें भी मैंने बताया कि हम लोगों ने आपको बताया था वनरेबल ग्रुप्स में इन्फेंट्स, बच्चे, छोटे बच्चों में ज्यादा, फिर फीमेल्स, फिर हमने बुजुर्ग, फिर हमने ट्रैफिक पर्सनल, इसी तरह से हर एक एज के हिसाब से भी कुछ कुछ बदलाव होते हैं, ठीक। अगर ये आप देख रहे हैं हेल्दी एजिंग कैसी होती है, नॉर्मल साइकिल, प्रेग्नेंट हुआ, बच्चा हुआ, बेबी हुई, स्टूडेंट पढ़ने गया, शादी हुई, उसकी शादी होने के बाद बढ़िया उसके जमीन से आसमां तक अजब सा इंतशार है, जमीन से आसमां तक। आज के इस महफिल की चीज सुना कि एक आदमी को एक दिन में 11,000 लीटर के करीब हवा की ज़रूरत होती है। मैं अगर यूं कहूं कि एक मिनट में 7 से 8 लीटर साफ हवा की ज़रूरत है, तो ये गलत नहीं होगा। इंसानों ने मौजूदा दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। इंसान आज जो महीनों का सफ़र चंद घंटों में तय करता है और चंद घंटों का सफ़र चंद मिनटों में तय करता है, लेकिन इसके नतीजे में जो माहौल के ऊपर बुरा असर पड़ा है, इसमें इंसानों के साथ साथ दूसरे जानदार और पेड़ पौधे भी शिकार हो रहे हैं। कि 7 मिलियन के करीब जो है वो लोग हर साल जो है जहरीले हवा का पीने की वजह से मौत का शिकार होते हैं। और पूरी दुनिया की 99% आबादी, जिसको मैं अगर यूं कहूं कि 10 आदमियों में से 9 आदमी जहरीले हवा का जो है सांस जो है अपने अंदर ले रहे हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां दुनिया में जन्म ले रही हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां दुनिया में आ रही है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, खासकर फेफड़ों की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां, उसके साथ साथ हमारी चमड़ी की बीमारियां और बहुत सारी ऐसी नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसी के साथ साथ मौसम के बदलते हालात, कभी बेमौसम बारिशों का आना, जलजलों का आना या सैलाब का आना, ये सब हम लोगों ने अपने हाथों से किया हुआ है। वबाएं, कहत, जलजले, ये किसका इक़्तिदार है ज़मीन से आसमां तक? गुबार ही गुबार है ज़मीन से आसमां तक। आज का जो हमारा थीम है कि द ईयर वी शेयर, और ये किस लिए है कि हम नीला आसमान दे सकें। हम नीला आसमान कैसे देख सकते हैं? इसके लिए हम सबको जो है वो एक होने की ज़रूरत है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि हम कूड़ा बिल्कुल ना जलाएं। जब हम बाज़ार जाएं तो अपना थैला साथ लेकर जाएं। उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क भारत
पूरी दुनिया में साइकिल बनाने में दूसरे नंबर पर है, लेकिन हम देखते हैं कि हम साइकिल का कितना इस्तेमाल करते हैं, इसलिए साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ घरों में, खासकर सर्दियों के मौसम में, हम ऐसी चीज़ों को कम जलाएं जिनसे माहौल में आलूदगी होती है और इस आलूदगी से हमारी जिंदगियों पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ साथ घरों में जब बिजली इस्तेमाल में ना हो तो स्विच को बंद रखें। इसके साथ साथ प्लास्टिक को बिल्कुल ना जलाएं, प्लास्टिक को बिल्कुल ना जलाएं। हाल ही में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें जो है वो सराहना करते हैं कि उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें प्लास्टिक जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको जुर्माना आयद किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम सब की एक इंडिविजुअल होने की जिम्मेदारी है कि हम सब जो है कूड़े को बिल्कुल ना जलाएं, वरना आने वाली नस्लें जो है वो आराम से सांस भी नहीं ले पाएंगी और वो कहेंगी आइंदा आने वाली नस्लें, अगर हमारा ऐसा ही चलता रहा कि रास्ते में ना बैठो, रास्ते में ना बैठो, हवा तंग करेगी, रास्ते में ना बैठो, हवा तंग करेगी, गुजरे हुए लम्हों की खता तंग करेगी। इसके साथ साथ जो है ना हवा साफ है ना फजा साफ है, ये आखिरी बातें हैं। ना हवा साफ है ना फजा साफ है, वो जो आबे बका था वो ना साफ है। जमी हो समंदर हो या आसमां, एक जरा सोचिए अब क्या साफ है। मौत से पुरखतर है ये आलूदगी, मौत से पुरखतर है ये आलूदगी। दोस्तों दिल में थोड़ी कसक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए और ताउल बड़ा कुछ फलक चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Lasciate parlandias, tene tipik emekputare sospe plus department uskon landias, tene amat sospe member landias, tene yen nyantagle, tene komoyang sompapa ni juksedu samala jule jun tukche jule. Tene nye mirikale azwa kon la ina juain mane gomane pala ngata mane mirikale machen mo ngata mina sepia machen mo kone chagle zade jode yot tene ladak zo amat sospa ba umene ta ngata daksa panma shiri daran gule mane ngaja mane chi samai tinin thokterle amat sospa ba tinin ba sala pin nanma kone mane penejiang pulte mane tinin botas penejiang pulte ngaje mane sospe azupena ekon benate jane ta pin diring ngaje amat sangmala mane puli tangche siang azupo amagula training yorle te tine ngata lebrosi bingle te lebrosi training tang siang mane yang ngata department mi chi tangse mane ro amasang ma sonte konga te rochoche namma mane department ni same te jane miang ma nyundu pa yades kunmo mane mis konno yopasangna tene amasang mala training salte kone mirere salte ngaje lebrosi bang amasang mala pata yorle daksaika kazuchi yona lebrosi no kazuchi mane manok zerkan testing ne ngata echari zerkan zume yongve yang tebe gang mane dadas kundone ngaja training salte amasang ma ha gochukse ngaja mane gamu asonte yang tebe samang ngaje mane gamu khechukse mas tinjan yone mane ma tinjan amagun masil kane amagula izam training ji tangs pane ama sports kese changtang ne nura ne kargil ne zamskar ne ngaja karu milep segment tebo samala inna ama samala training yot pasangna rangrang mane kurang chucho karana gangle ama karana gangle chucho chungi zinokle chucho chungi se ama go ngaje basena bachichi na jang se khera no jung ne ngaya pene otangchen baki ama go ne rangrang gas po rangrang kuranole Jamal dun ger ngaja zam dunang pyo dukste tene chuzo rere na kuranga chuze ama be ikane chi lobse a chuze be na tena ama be tena izupo labja bo sarte skoda no yan tene ding mane tukje che yuat mane ngena yang ngata luspo nang khoryuk na inon ne ka izupo che azupo siche se kana yang ama sokta tinin ji thopa sana ta thore ngaja zamskar la tu jiktam chene zamskar la tu tampa yang ngaje isperao mane zamskar yul la ngaje mane yul sama lun ma chuka ngaje chochen tebe kayang ngaje ama chamme mane tebe ka labja isu cho zada no dang ngaje tini a sompin teni isu yang anang le dr sahib na ko samme moldu ngata sam shikhande ka ngata isu ko noskar le bazer kan bo zete ngaje yang yul sama la sonte juche zeno yale